Jai Narayan students, welcome back to your social science class. So students, today we will study civics lesson number 1 on equality. हमने अपनी previous class में भी यह chapter start किया था on equality, जिसमें हमने समझा था equality क्या है और इसको समझने के लिए हमने 3 stories देखी थी, जिसमें से थी एक कांता की story where we found the difference in an economic condition. Economically she faces a difference. Then we have studied one more story about Om Prakash Valmiki, a famous Dalit writer. He faces a discrimination or inequality on the basis of caste system, and the Ansaris who faces discrimination on the behalf of their religion. Now today we will cover the topics equality in Indian democracy, midday meal scheme, what are the benefits of this, why government has asked the states to start midday meal scheme, issues of equality in other democracies, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही इनइक्वालिटी देखी जा रही, कुछ और कंट्रीज भी हैं जहां पर इनइक्वालिटी थी तो उनको लेकर के जो प्रॉब्लम थी. सिविल राइट मूवमेंट क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ, हम पढ़ेंगे. एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज टॉपिक्स लेट्स सी द स्लाइड्स. स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टार्ट करने से चैप्टर स्टार्ट किया था ऑन इक्वालिटी पे. हमने इक्वालिटी के बारे में जाना, हमने 3 स्टोरीज देखी कि कैसे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ इनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर, उनके कास्ट पर, उनके रिलीजन के बिहाफ पर. नाउ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, लेट्स सी दैट. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारा भारतीय संविधान सारे लोगों को इक्वल समझता है. एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूड्स मेल और फीमेल फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकोगनाइज्ड एज इक्वल. In our country, there are laws to protect people from discrimination and ill treatment. अब इन सब से बचने के लिए क्या किया है, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इक्वालिटी. सो देयर आर द फॉलोइंग provisions have been made. So that article 15, the first one is every person is equal before law. लॉ के सामने सारे लोग बराबर हैं, यानी ऐसा नहीं होगा कि रिच के साथ कोई और जजमेंट, पुअर के साथ कुछ और जजमेंट, ऐसा नहीं है. दे आर द लॉज विच आर इक्वल टू एवरीवन. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर. Every person has access to all public places including playground, shop, market, hotel. All persons can use public wells, roads and bathing ghats. जो कि हमने पढ़ा था कि पहले ऐसा नहीं था. जैसे कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी पढ़ी थी, तो हर पर्सन हर जगह जा सकता है, हर चीज़ का यूज़ कर सकता है. Untouchability is abolished. Now, in order to implement the equality that is guaranteed in Constitution, the government has taken 2 important steps. The first one is formation of law, forming laws that protect every person's right to be treated equally. Second is schemes. Government has launched various programs to help disadvantaged communities. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have been treated unequally for several centuries. Now the scheme which is very helpful, that is the midday meal scheme. So midday meal scheme refer to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. So Tamil Nadu was the first state to start midday meal in school. In 2001, the Supreme Court instructed all states to implement midday meal scheme in their school. सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में सारे स्टेट्स को ये ऑर्डर दिया कि वो सारे स्टेट्स अपने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, उनमें मिड डे मील स्कीम को चालू करेंगे. अब व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आ रहे थे. More poor children began enrolling and regularly attending the school. बहुत ज़्यादा जो पुअर बच्चे थे उन लोगों ने क्या किया, एडमिशन लिया, रेगुलर स्कूल अटेंड करने लगे. This program helped reduce
caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together. अब इसने क्या किया, जो कास्ट प्रिजुडाइज थी, कास्ट सिस्टम जो था उसको बहुत हद तक ख़त्म करने की कोशिश करी, क्योंकि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बच्चे थे दोनों एक साथ बैठ कर के एक जगह खाना खा रहे थे, एक जैसा खाना खा रहे थे. दिस प्रोग्राम ऑल्सो प्रोवाइडेड फूड एंड न्यूट्रिशन to children of poor families who were not able to provide healthy nutrition to their children. जो गरीब बच्चे थे उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही थी, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, तो इस प्रोग्राम से उन बच्चों को खाना भी मिलने लगा और न्यूट्रिशियस फूड मिलने लगा जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, हेल्दी न्यूट्रिशन टू देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों को मिलने लगा. So the midday meal program has helped increase the enrollment and the attendance of poor children in the school. There continues to be big difference in our country between a school that the rich attend and those that the poor attend. यानी कि ज़्यादातर हम देखते थे कि अमीरों के बच्चे स्कूल जाते थे, गरीबों के बच्चे उनके फैमिलीज़ के साथ काम कर रहे होते थे, बट मिड डे मील आने की वजह से पुअर फैमिलीज़ भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगी कि कम से कम उनके बच्चों को एक टाइम पे प्रॉपर तरीके से खाना तो मिलेगा. अब जब बच्चा स्कूल जाएगा तो कुछ ना कुछ तो वो कुछ सुनेगा, कुछ देखेगा, तो कुछ सीखेगा ही. इसकी वजह से जो मैंने अभी आपको कहा कास्ट प्रेजुडाइज, सो इवन टुडे कि जो कास्ट वाली जो चीज़ है, कास्ट सिस्टम है, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की गई है. अब हम बात करते हैं इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़. यानी कि आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around with community struggle. खाली इंडिया ही नहीं, एक ऐसा ही इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था जहाँ पे इनइक्वालिटी थी, और भी बहुत सारी कंट्री हैं. For that, I am going to just tell you the story of Rosa Parks, she was an African American woman. So the story in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to be described their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. So what happened? The Rosa Parks was tired for a long day at her work and she refused to give up her seat on a bus to a white man. रोज़ा पार्का अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी और वहाँ पर रूल था कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पीछे बैठना है और अगर वहाँ पर कोई वाइट आ गया और पीछे तक अगर सीट फुल है तो आप अपनी सीट वाइट को देंगी. सो इट हैज़ बीन रिटन इन ऑल्सो योर बुक, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. यानी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको बस में जब ट्रैवल करते थे उनको सबसे पीछे बैठने को कहा जाता था, और अगर सीट नहीं होती थी तो वाइट्स के लिए उनको वो अपनी सीट खाली करनी पड़ती थी. तो एक दिन रोज़ा पार्का अपने डेली दिन के काम से एकदम थक करके ट्रैवल कर रही थी एंड जब वहाँ पर वाइट मैन आया तो उन्होंने अपनी सीट देने से रिफ्यूज़ कर दिया. एंड द डे इज़ 1 December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal way in which African Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate school specially set up for them. तो आपने देखा कि यहाँ पर स्कूल भी डिफरेंस थे उनके लिए. तो ये सिविल राइट एक्ट के थ्रू ये क्या हो गया,
ख़त्म करा गया कि सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 ने प्रोहिबिट कर दिया और उसने कहा कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के बिहाफ पर। सारे बच्चे एक साथ एक जैसे स्कूल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन अमेरिकन के लिए दूसरा स्कूल होगा, अमेरिकन के लिए दूसरा होगा, ऐसा नहीं होगा। हाउएवर डिस्पाइट दिस अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन continue to be among the poorest in the country. Most of African American children can only afford to attend government school that have fewer facilities and poor qualified teacher as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government schools are as highly rated as private. सो आप देख रहे हैं कि इसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी, जो मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन की थी वो भी पुअर थी कंट्री में, और जो उनके बच्चे थे वो अच्छे स्कूलों का अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वो गवर्नमेंट स्कूल में ही जा पा रहे थे जहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज़ थी, टीचर्स भी बहुत अच्छी क्वालिफाइड नहीं थी एज़ कम्पेयर्ड विद द वाइट स्टूडेंट्स। जो वाइट स्टूडेंट्स थे वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे थे जो कि हाईली रेटेड थे एज प्राइवेट स्कूल, तो वो भी उनके लिए है था। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट द अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड अनइक्वली इन द USA. So while traveling by a bus, they either has to sit at the back of the bus or get up from their seats whenever a white person wished to sit. So the civil rights movement in America started in the late 1950 to push for equal right for African Americans and to end racial discrimination. So we can say that abolished हो गया जो रोज़ा पार्कर थी उनकी वजह से। So on that day Rosa Parks initiated a new era in the American quest for freedom and equality. Now Disability Act 1995. अब Disability Act क्या है? That we all are equal but sometimes we were having some physical problem. शायद हम प्रॉपर तरीके से चल ना पाए या मेरे हाथ अच्छे से काम ना करें या आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद माई आइज. सो दिस डिसेबिलिटी also has taken, government has taken an action for that also. They has made in a few laws. So this law states that person with disability have equal right and the government should make possible their full participation in society. गवर्नमेंट ने उनके लिए लॉ बनाया कि उनको भी पूरा अधिकार है गवर्नमेंट की सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का. दे हैव, और उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए. The government has to provide free education and integrate children with disabilities into mainstream schools. This law also states that all public places, including buildings, schools, shopping mall, etc., should be accessible and provided with ramps. अब accessible कैसे होने चाहिए ये आप समझ लीजिए. जहाँ पर रैम्प्स वगैरह हो, अगर मैं व्हील चेयर पर हूँ, मेरे पैर वर्किंग में नहीं है, तो मैं ईजिली व्हील चेयर से उसके ऊपर चढ़ जाऊँ, क्योंकि सीढ़ी से तो मेरे लिए चढ़ना पॉसिबल नहीं होगा अगर मैं व्हील चेयर पे हूँ. तो उन जगहों पर ये होना ज़रूरी है जहाँ पे आप रैम्प बनवाएंगे. जहाँ पर अगर मैं आऊँ, जैसे बैंक्स हैं, स्कूल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तो वहाँ पर एक फैसिलिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं आसानी से वहाँ पर आ जा सकूँ, क्योंकि मेरे को भी इक्वल राइट है. द पर्सन हु इज़ हैविंग अ फिजिकल डिसेबिलिटी, उसको भी पूरा राइट है, वो भी हर जगह जा सकता है. बट उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके लिए आपको जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप उनको अनदेखा कर देंगे. दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. So these are the few things that the government has done. Now the challenge of democracy. No country can be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the ideas of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is the struggle for recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained.
So we will discuss all these things one by one in this book, as we were having a different types of chapters in this book. You have already studied about role of a government in our health. Now we will study in the next chapter how the state government works. आप 6th में पढ़ करके आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट. तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. So thank you class. I think this is clear to all of you.